बहुत दिन लग गए इस टॉपिक ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਚਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸ਼ਪਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਨਾ, ਵਾਚਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਾਚਾ परमेश्वर ने एक प्रॉमिस करना, और परमेश्वर ने सानू प्रॉमिस कीते कि जो तुसी मेरे लिए करोगे मैं तुहाडे लिए इदां करांगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ वाचा बनदे हां, जो ਅਸੀਂ परमेश्वर ने कहंदे कि परमेश्वर मैं 40 दिन ये चीज करांगा, मैं 1 साल ये करांगा, क्योंकि मेरे साल दे ऑल्टर्स हुंदे, साल 3 साल दे ऑल्टर्स खुदा ने मैनू दिते होए है, जो मेरे अगुए है, जिन्हां तो मैं सिखदी हां कई चीजां। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤਕਲੀਫ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਪਥ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀਨੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਵੀਨੂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਰਾ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਂधी ਆਏ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਚਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਖਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, 40 ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਫ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਚਾ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਤੀਆਂ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। गलातियों 3 अध्याय और 16 आयत। जो पहले निकाल लेगा प्लीज पढ़ देना। सॉरी 3 अध्याय 15 आयत है। गलातियों 3 अध्याय और 15 आयत है। हे ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਏਦਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਚਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ही नहीं। आज वो चीजें लिखिए, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, जो मनुष्य की वाचा पक्की हो जाती है किहदे नाल? इंसान नाल, परमेश्वर नाल संगति। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵਾਚਾ ਹੈਗੀ, ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਵਚਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿष्यवक्ता ਆਪ ਹੋ। हालेलुया।
वचन वचन का ज्ञान ना होने करके मेरी प्रजा नाश हो गई। हुण जो ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ वाचा बन ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ प्रॉमिस कर ਲੈਂਦੇ कि ਅਸੀਂ ਇਹ चीज करांगे, परमेश्वर मैं चीज मन करांगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। परमेश्वर मेरा तुसी ये काम करोगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी जॉब तो 5% 10% दूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस। परमेश्वर ने क्या ठीक है ने मैंने प्रॉमिस किया। जो परमेश्वर सानू वादा देन लगते हैं, पहले 100 रुपया करना बड़ा ईजी हुंदा, 1000 रुपया करना बड़ा ईजी हुंदा, जो 10,000 करना हुंदा कितना टफ लगदा ना। ਅਸੀਂ प्रॉमिस तोड़ना शुरू कर देंगे, प्रॉमिस ही तोड़ना शुरू कर देंगे। जो सानू थोड़ी परमेश्वर वालों डांट पैनी शुरू हो जाती है या परमेश्वर सख्ताई करते हैं, ਅਸੀਂ परमेश्वर की हजूरी जाना छोड़ देंगे। प्रॉमिस तोड़ना कितना, और अबलीस चाहता है कि ਅਸੀਂ प्रॉमिस तोड़िए, अबलीस चाहता है कि ਅਸੀਂ प्रॉमिस तोड़ दीए, परमेश्वर ਨੂੰ शर्मिंदा करें। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर ने आज भी जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किए, जो वाचावां बनियां वो आज भी पूरियां हो रही हैं। मैं सब तो पहले जो परमेश्वर पूछा, मैं क्या परमेश्वर वाचा की सी, परमेश्वर ने नूह दे समय एक वाचा बननी सी। परमेश्वर पहले एक गल कहना, परमेश्वर वाचा बनदे क्यों है साडे नाल। जो ਅਸੀਂ एक वेदी बनाते हैं, एक ऑल्टर खड़ा करते हैं, परमेश्वर ने प्रॉमिस करते हैं, परमेश्वर आशीषित होके स्वर्ग नू झुका के नीचे उतर आके प्रॉमिस करते हैं, मैं तेनू आशीषित करांगा। जो मेरी वाचा का पालन करता है, जो मेरे प्रॉमिस दा जो मैं उन्हें दिते है उन्हां दा पालन करदा पिया है, ओदे उत्ते चलदा पिया है, मैं उन्हें की करांगा, आशीषित करांगा, ब्लेस करांगा, ओदे नाती ओदे पोतियां नू भी ब्लेस करांगा। जी मैं परमेश्वर ना वाचा बनी है, मेरे बच्चे उत्ते भी ओदी ग्रेस जाएगी। परमेश्वर निर्दयी नहीं है, परमेश्वर प्यार करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। ਅਸੀਂ उत्पत्ति 9 अध्याय पढ़ांगे, नूह दी वाचा। परमेश्वर ने पहले नूह ना वाचा बननी, क्योंकि परमेश्वर ने जो बहुत कुछ हो गया 9 अध्याय इतने 9 आयत लिखा है, वाचा बांधना, वाचा बनना मतलब प्रॉमिस करना, मैं तेरे वंश नाल प्रॉमिस करांगा। परमेश्वर साडे वंश नाल प्रॉमिस कर दे। हालेलुया। परमेश्वर साडे वंश नाल की कर दे, प्रॉमिस कर दे कि मैं वाचा बनांगा, मैं तेन प्रॉमिस करदा कि आज तो बाद मैं काम नहीं करांगा, मैं तेरी उपज खान वाले नू लुड़कांगा। और परमेश्वर लुड़कदे है, परमेश्वर डांटदे है, उन्होंने निकालदे है। प्रॉमिस, आज तो बाद तू कदे बीमार नहीं होएगा, प्रॉमिस। मैं तेरे अन्न और जल दे उत्ते आशीष पाऊंगा, सारे रोगां नू तेरे घराने चों दूर करांगा, प्रॉमिस। पर वो प्रॉमिस किदों पूरे हुंदे, जदों असीं परमेश्वर ने एक वाचा बना के, वाचा करके जदों असीं परमेश्वर नाल चलदे हैं, फिर वो प्रॉमिस साडी जिंदगी दे विच पूरे हुंदे। आज्ञाकारी नाल साडी जिंदगी च परमेश्वर दे प्रॉमिस प्रतिज्ञावां पूरीआं हुंदियां हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ प्रभु जी, एक एग्जाम्पल खुदा दात में करे, मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार महिमा सही प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। है धन दी घटी को पूरा करेगा, आगे ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं पे, पालना ਅਸੀਂ कुछ करते नहीं पे, परमेश्वर का कहना ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ नहीं पे, प्रॉमिस परमेश्वर दे पूरे नहीं करते, फिर वो वचन कितना पूरा हो जाएगा। परमेश्वर इस वचन उत्ते मैं दिन रात पढ़ी जांदा पे, 40 बार पढ़दा, ये ते पूरा नहीं होया। ठीक है ना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ वाचा ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ पूरा करते हैं, कईयां ने ते 40-40 दिन की वाचा बनी, 3-3 महीने की बनी, बाइबल पढ़ी, किन्नियां बीमारियां तो तुसी आजाद होए। वो आशीष नहीं मिली, तुहानू वीजे नहीं मिले, तुहाडे रस्ते नहीं खुले। होर परमेश्वर नाल वाचा बनो, होर प्रॉमिस करो। हालेलुया। जो ਅਸੀਂ परमेश्वर ने प्रॉमिस करके वाचा बन के पूरी करते हैं, परमेश्वर कहते ये मेरे की है मन पांदा इंसान, मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂਹ ਦਾ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 9 ਅਧਿਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੂਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੈ। मैं 9 आयत ਨੂੰ पढ़न जा रही हूँ। सुन मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। ਜਿਹੜਾ वंश होएगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी वाचा बननागा। ठीक है। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ वाचा बनेंगे, परमेश्वर कहते जब
और सब प्राणी, जीवित प्राणियों से जो तुम्हारे संग है, ये पक्षी, पशु, घरेलू, पृथ्वी के सब बेमेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी ये वाचा बांधता हूं कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगी। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीव जंतु प्राणी तुम्हारे संग है, उन सबके साथ युगो युगों की पीढ़ी के लिए बांधता हूं। जल प्रलय ना नहीं दुनिया खत्म होनी, दुनिया और किसी ना चीज ना खत्म होनी। परमेश्वर ने वाचा बांध ली, प्रॉमिस कर लिया कि मैं चीज नहीं करांगा। कौन? मैंने ये उसका ये चिन्ह होगा कि मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी की बीच में वाचा का एक चिन्ह होगा। इंद्रधनुष देखते हैं तुसी, जो तो बारिश तो बाद आंदा है, देखिए ओ परमेश्वर दी वाचा है, याद दिलांदे है परमेश्वर कि मीह तो बाद मैं किसी भी चीज में नष्ट नहीं करा। हालेलुया, ये परमेश्वर दी पहली वाचा सी। हालेलुया, इस तरीके ना जो परमेश्वर ने वाचा बनी, आज तक परमेश्वर ने चेंज नहीं की। जो भी मैं इंद्रधनुष देखती है ना, तो मैंने नूह वाली वाचा परमेश्वर की याद आ जाती, सीरियसली। मैंने देख परमेश्वर ने वाचा बनी है, परमेश्वर कहते देख वो भी किथे किथे बारिश तो बाद नजर आता, हमेशा नजर नहीं आता इंद्रधनुष। वो जीव जंतुओं नाल बनी हुई है, नूह नाल बनी हुई वाचा है, और साडे युगो युग तक बच्चों नाल बन दिती है वाचा है। ऐसी परमेश्वर ने अब्राहम नाल वाचा बनी कि मैं तेरे वंश नू, और जो परमेश्वर किसी ना वाचा बनदे, याद रखना उस वाचा नु परमेश्वर पूरा कर दे, निभांदे है, छोड़दे नहीं है, पूरा कर दे। हालेलुया, अब्राहम दी वाचा। ਹੁਣ परमेश्वर ने जो सब तो पहले ते परमेश्वर सानू अपने घराने दे विचों निकालदे है, साना प्रॉमिस करदे है, वाचा बनदे, जगत से परमेश्वर ने सानू चुन लिया और साना वाचा बननी है। अब्राहम नु की किता परमेश्वर ने? उस देश तो निकालिया, कुटुंबियां तो निकालिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਮਸੀਹ ਚ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਗਰ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, कुछ ही होगे जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर दी ज्यादा ग्रेस होगी। हालेलुया। 12 उत्पत्ति 12 अध्याय लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देता है उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा मैं उसे शाप दूंगा। उन्हें क्यों होया? क्यों परमेश्वर ने उन्हें वाचा मान ली दूसरी और तीसरी? क्योंकि उन्हें अपने कुटुंब, अपने घराने, अपने उस चीज नु छोड़िया परमेश्वर ने, फिर परमेश्वर ने वाचा बननी। और कहना नहीं मैं ते नहीं छोड़ सकता अपने घराने नु, परमेश्वर कहते मैं तेन ब्लेस भी नहीं कर सकता। पहले अपने घराने नु, अपनी जिंदगी नु छोड़ना पैंदा है, एक नवी नवी सृष्टि दे विच एंटर करना पैंदा है, फिर परमेश्वर साडी जिंदगी च उस वादियां नु, उस वाचावां नु जो परमेश्वर ने साडा बन्निया उन्हां नु पूरा कर। ये पहला प्रॉमिस सीगा किहदे नाल? अब्राहम नाल। पहला प्रॉमिस सीगा कि मैं तेनू की करांगा, आशीषित करांगा, पर पहले तू उस कुटुंबे तो निकल। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं ही पढ़ रही हूँ। हालेलुया। फिर उस तो बाद, क्योंकि आज दा टॉपिक बड़ा डीपली है सीखण दे, फिर उस तो बाद परमेश्वर ने 13 अध्याय दे विच लिखिया है, फिर परमेश्वर ने की कीता 14, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगों युगों के लिए दूंगा। ये सेकंड वाचा बन ली परमेश्वर ने, पर उदो परमेश्वर ने लूत तो अलग कर दिता। जिन्हें देर तक लूत चल रहा सीगा, परमेश्वर ने उन्हें कनान देश नहीं दिता। केवल परमेश्वर सानू कुछ समय ਲਈ 1 साल ਲਈ 6 महीने ਲਈ कुछ समय ਲਈ परमेश्वर सानू दूर करते हैं अपने घराने तो, अपने लोगों तो। जो मैनू खुदा ने
ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब सब कुछ बंद सी, सब कुछ 2014, 2015, 2016, 17, 18 कुछ नहीं देखती सी मैं। ऑलमोस्ट फेस मैनू जो मैं वापस पता मैनू फेसबुक भी बंद कर दी सी, फेसबुक भी नहीं देख सकती। हालेलुया। मैं फेसबुक कुछ भी नहीं, सिर्फ वचन पढ़ना, परमेश्वर ना चलना, परमेश्वर की उपस्थिति चलना, परमेश्वर की आवाज ਨੂੰ सुनना, सब कुछ। फिर जो परमेश्वर ने लूत तो अब्राहम ਨੂੰ अलग किया, फिर परमेश्वर ने 16 च फिर परमेश्वर ने अब्राहम ਨੂੰ किया, मैं तेरे वंश को पृथ्वी के धूल के किरणों के समान बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किरणों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। कितनी बड़ी आशीष दे दी। अज अब्राहम 3 मूल वड्डियां वड्डियां जातियां दा, वड्डे वड्डे धर्मां दा मूल पिता है। पता है? क्रिश्चियंस दा, यहूदियां दा, मुसलमानां दा। मुसलमान भी जिन्ने मुसलमान है वो सारे अब्राहम ਨੂੰ अपना मूल पिता गिनदे, जिन्ने क्रिश्चियन है वो सारे अब्राहम ਨੂੰ मूल पिता गिनदे, जिन्ने यहूदी है इजराइली वो सारे अब्राहम ਨੂੰ अपना मूल पिता गिनदे। तिन्ना दा मूल पिता बने। ਉਹਦੀ ਧੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ऑल्टर्स करते जा रहे हैं, प्रार्थनावां करते जा रहे हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा, कि मैं लगता खाली जा रही है प्रार्थनावां, परमेश्वर सुन ही नहीं रहे, फिर लाइफ चेंज नहीं हो रही। परमेश्वर कहते पेशेंस रख, मैं जो वाचा ते ना बननी है ना मैं पूरी करांगा। पर तू भी ना किद्दां दी वाचा बननी है, तुहाडी वाचा किद्दां दी है, तुहाडी वाचा किद्दां दी। दुख आया फिर नहीं करनी बाइबल, प्रॉब्लम आई फिर नहीं करनी बाइबल, फिर नहीं जाना परमेश्वर। तुहाडी वाचा किद्दां दी अज, अगर तुहाडी वाचा स्ट्रॉन्ग है परमेश्वर नाल, याद रखना परमेश्वर तुहानू स्ट्रेट करूगा, बेस्ट चीजां दो, बेस्ट चीजां दो। फिर परमेश्वर देखो, परमेश्वर प्रॉमिस करके साडी परीक्षावां भी लंदे है। परमेश्वर कहंदे मैं करांगा, तेरे लिए करांगा। सब कुछ परमेश्वर ने किहदे लिए बनाया है, किहदे लिए बनाया है? गड्डियां किहदे लिए बनाई, अपने लिए बनाई है। फोन किहदे लिए बनाया, अपने लिए बनाया है। दुनिया दी संसार दी चीजां परमेश्वर ने अपने लिए बनाई है, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ कि मैं तेन बेस्ट उत्तम चीजा दवांगा। ये भी परमेश्वर का वादा है, मैं तुझे उत्तम से उत्तम बेस्ट जो याकूब के घमंड का कारण होगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, शपथ खादी है, पर असि चीज करते ही नहीं है। तो अब्राहम ने चीजा कीतियां, फिर परमेश्वर ने अब्राहम नू, आज सारे अब्राहम नू जानते हैं, धार्मिकता ओदी, विश्वास ओदी धार्मिकता गिनी गई, ओदा एक विश्वास ओदी धार्मिकता गिनी गई। साडा विश्वास साडी धार्मिकता गिनिया जा सकदा, साडा विश्वास, मेरा बहुत विश्वास है, धर्मी इंसान है ना अपने परमेश्वर पे विश्वास। पता नहीं परमेश्वर ने करना कि नहीं करना, पता नहीं किदों प्रार्थना सुननी कि नहीं सुननी, इतना फर्क पै जांदा ना। उस तो बाद 17 अध्याय नूं पढ़न जा रहे हैं, हालेलुया, सॉरी 15 अध्याय नूं पढ़न जा रहे हैं। पहले मैं अब्राहम दी वाचा दसदा ना, फिर परमेश्वर ने याकूब ना वाचा बन्नी, असाब ना वाचा बन्नी, मतलब वाचावां बन्नियां परमेश्वर ने, वो इंसाना ने वाचा बन्नी। हालेलुया। अब्राहम के साथ यहोवा की वाचा बांधने का वर्णन, जो टॉपिक है 15 उत्पत्ति 15 अध्याय का की टॉपिक है वर्णन। हालेलुया। जो कोई लिख रहा है ये यूट्यूब च इन्ने क्लियर सारे वचन नहीं कर लिखे जाएंगे। अमन ब्रदर सिर्फ इन्हें पाना है परमेश्वर की वाचा, बस समझाने बहुत आयत है। जो 15 अध्याय पढ़ते 6 आयत पढ़ते, उसने यहोवा पर विश्वास किया
और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। विश्वास करने वाला कि हले परमेश्वर ने कुछ दिता नहीं, पर परमेश्वर की एक गल ते उन्हें विश्वास किया। जो पिछे असी 2 अध्याय पढ़े है, 12 अध्याय और 13 अध्याय जो असी पढ़े है, हालांकि कुछ नहीं सीगा, पर उन्हें परमेश्वर की हर एक गल ते विश्वास किया। जो तुसी इस पवित्र शास्त्र ते विश्वास करते हो, परमेश्वर के प्रॉमिस से, परमेश्वर की प्रतिज्ञावां ते विश्वास करते हो, सीरियसली परमेश्वर तुहाडे नाल शपथ बनन स्वर्ग नूं झुका के नीचे उतर आ जाएंगे। मैं तेनों इस देश दियां वस्तुआं दवांगा, इस देश दे विच मैं तेनों दृढ़ करांगा, मैं तेरे फाटकां नूं दृढ़ करांगा। समझ रहे हो? जो मैं इस घर नूं लिया ना, ते मैं जिस दिन मेरी रजिस्ट्री हुई ना, ते मैं घर आके खुदा नाल गलबात की। मैं कहा खुदा मेरे नाल गल करो, मैनू आंसर दो। परमेश्वर ने कहा हे यरूशलेम प्रशंसा कर मेरी, हे सिय्योन मेरे लिए गीत गाए। मथे अपना नाम लिखिया। मैंने तेरे फाटकों को दृढ़ किया, मैंने तेरे लड़कों को आशीष दी, मैंने तेरे टेबल के ऊपर उत्तम उत्तम गेहूं को रखा। मैं क्या फाटक दृढ़ करना मतलब एक जगह दे विच घर बनना, दृढ़ करना। मैं अपने हस्बैंड को मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिता, इटली दे विच कर देगा कि मैं और मेरा आने वाला वंश, मेरे आने वाले बच्चे, उन्होंने प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि जो माँ बाप घर बनाते बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। 4 पीढ़ियां ब्लेस होंगी जो ਅਸੀਂ परमेश्वर की आज्ञाकारी अधीनगी च चलते हैं। परमेश्वर साडी आने वाली 4 पीढ़ियां ਨੂੰ ब्लेस कर। जिदा अब्राहम के ना परमेश्वर ने वाचा बन ली, परमेश्वर ने दाऊद ना वाचा बन ली कि मैं तेरी गद्दी तो कदी भी राजा नहीं उतरेगा, कदी भी नहीं। अज तक दाऊद दे घराने दे विच कोई ना कोई राजा निकल ही रहा है, किड्डी पुरानी गल है। पर उन्होंने की किया, परमेश्वर की हर एक चीज नू, प्रॉमिस नू, आज्ञा नू अधीनगी नाल चले, कहना मन्निया। उन्होंने शाम नू प्रार्थना करनी, उन्होंने शाम नू प्रार्थना करनी ही करनी। उन्होंने प्रार्थना, इसहाक जो सीगा, इसहाक डेली शाम नू परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करन जांदा ही जांदा सी, चाहे ओदे बच्चा होया चाहे ना होया, बचपन तो ओदी आदत सी कि वो जांदा सीगा। फिर परमेश्वर ने इसहाक ना भी वाचा बांध ली, मैं तेरे आने वाले मूल नू, वंशां नू ब्लेस करांगा। जो असीं परमेश्वर की हजूरी जाते हैं, परमेश्वर सानू एक प्रॉमिस कर देंगे, मैं तेनों लंबी आयु दूंगा, तेरे घर च बीमारी एंटर नहीं होएगी, प्रॉमिस है। मैं तेरी हड्डियां नू मजबूत करांगा, मैं लुड़कांगा, प्रॉमिस है। ये वाचावां है खुदा दी जो असीं परमेश्वर की हजूरी दे विच चलदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इत्थे पढ़न जा रहे हैं, पर इत्थे एक चीज 15 दे विच अब्राहम ने एक चीज की जो परमेश्वर ने उन्होंने किया। 9 नू जो असीं पढ़दे हैं कि तू ये वाले जानवर रख, ते कोई भी पक्षी उस जो उन्हें बलियां रखिया परमेश्वर दे अगे, चीजां रखिया परमेश्वर नू खुश करनी। हुण असीं इत्थे समझदे कि परमेश्वर जो वाचा बनदे पे एक वेदी बना रहे हैं, एक ऑल्टर बना रहे हैं परमेश्वर नाल एक वाचा बनन दी। इत्थे जो असीं पढ़ांगे 9 तो, यहोवा ने उसे कहा मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोल, एक 3 वर्ष का बकरा, 3 वर्ष का मेढा, 3 वर्ष का कबूतर, ये चीजा नू लै बिचों कट ते रख। और शाम तक परमेश्वर ने उन्होंने आके देखा तक नहीं, पेशेंस देखे अब्राहम दे, पेशेंस देखे परमेश्वर ने। जो परमेश्वर ने मेन सीरियस वाचा बननी सी, जो एक चीज उन्हें वाचा बननी, उन्होंने हल्की जी चपकी लगी। 17 च लिखा, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी उसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। परमेश्वर टुकड़ियां दे विचों होकर निकल, ओदी 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 थैंक्स गिविंग नू, ओदी परमेश्वर दे जो अगे ने एक वेदी बनाई, एक ऑल्टर बनाया, एक परमेश्वर ना वाचा बननी। पहले ब्लड दी वाचा होंदी सी, नमक दी वाचा होंदी सी, कहंदे नमक खादा ना, नमक हलाली ना करी। अजकल ते नमक खा के लोकी बदल जाते हैं। पहले तो जमाने च कोई किसी का नमक खा लेंदा सी ना, उन्हें धोखा नहीं दिंदा सी, नमक खाता है भी मैं तेरा। अजकल तो कहते जिस थाली में खाते उसी में छेद कर देंगे। हालेलुया। ते ओ चीज सीगी, परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था च भी नमक लिखिया कि जो भी मेरे कोल आन, नमक, नमक की वाचा भी परमेश्वर ने बननी सी। हमेशा जो भी तुसी किते जांदे, नमक देखिया हर जगह चढ़िया हुंदा, नमक। परमेश्वर सानू जगह का नमक क्यों ठहरा देता?
नमक दी वाचा जो कदी तोड़ नहीं सकते, क्योंकि असि जो नमक खा लेंगे ना किसी का, फिर कहते असि नमक खादा, धोखा नहीं देना। सुनिया तो बहुत होना तुसी इस चीज नो, पर ये परमेश्वर ने कैसी, जो मेरे अगे अन्न बलि, मेल बलि, कोई भी बलि लेके आएगा, बिना नमक तो ना लेके आई, बिना नमक तो ना लेके आई। लेवी व्यवस्था दे विच लिखिया होया, हालेलुया। 18 च लिखिया, इस दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी। केड़ी वाचा बननी परमेश्वर ने? प्रीत मेरा सिस्टर पढ़ना, केड़ी वाचा बननी? ये 18, 19 और 21 केड़ी वाचा बननी? उस दिन यहोवा ने एक नेम अब्राहम नाल बन्निया कि तेरी अंश नूं मैं यह धरती दे दिती है, अर्थात मिस्र दे दरिया तो लैके वड्डे दरिया प्रांत तीक, अते केनियर, कनीजी जातियां पढ़नियां औखियां हो जानियां, ठीक है। ये सारियां जातियां जो सीगियां कि कनाक देश मैं तेनू दे दिता, कनाक देश मैं तेनू दे दिता, तेरे आने वाले वंश नू दे दिता। पर परमेश्वर ने उस समय नहीं दिता, क्योंकि वो थोड़े सीगे, उस देश के लोग कनानी, कमदोनियो, हित्तियों, ये रपाइयो, एमोनियो, ये जेड़े सीगे बहुत ज्यादा सीगे। और अब्राहम दे उस समय मुश्किल ना 70 ही जने सीगे, 70 तो भी घट सीगे। जो याकूब किथे गया सी, मिस्र दे विच गया सी, 70 लोग गए सी, इस चीज को समझ चुके। परमेश्वर ने मिस्र दे विच वधाया, उत्थे तन लुटिया, फिर जाके परमेश्वर ने उन्होंने लखां दे हिसाब ना करके कनान देश उन्होंने दिता। शायद वो दबा भी सकते सी, पहले परमेश्वर सानू वरदाना नाल पढ़दे, चीजां नाल पढ़दे, फिर परमेश्वर सानू बाहर कढदे किसी टाइम। वाचा अज बननी है, जरूरी नहीं है ये वाचा परमेश्वर ने अज बननी है, सानू अज दर्शन दे दिता है। उस दिन मैं अपने घर दे विच दुआ कर रही सी, ते मैनू खुदा ने दिखाया कि मैं अपने दर्शन दे विच इस घर दे विच दुआ कर रही सी। मैं बड़ी हैरान हुई, कई चीजां मैनू खुदा ने दर्शन दे विच दिखाई, और मैनू याद ही नहीं मैं किदों दर्शन देखे हुए सी। जुदा खुदा तुहानू अज दर्शन दिखांदे आ, अज अगर कोई प्रॉमिस दिंदे, अगर अज कोई वचन दिंदे, जरूरी नहीं वो अज ही पूरा हो जाएगा, उन्होंने सालों साल उस वचन नू पूरे होने दे विच लग जांदे है, उस प्रॉमिस नू। तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, इस प्रॉमिस नू, वचन नू टाइम लग जाता है। प्रॉमिस है वाला भी, तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, मतलब टाइम लगता है, एकदम कई चीजां नहीं हो जांदियां। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं नहीं हो जाए, नहीं ਏਦਾਂ नहीं ਹੁੰਦਾ, टाइम लगता, हर एक चीजों पेशेंस रखनी पैंदी, पेशेंस रखनी पैंदी। अब्राहम ने पेशेंस, फिर परमेश्वर ने 17 अध्याय दे विच फिर अब्राहम ना वाचा बनी, चिन्ह वाचा, चिन्ह दी वाचा, चिन्ह दी वाचा अगर ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਨਾ परमेश्वर ਲਈ परमानेंट फिक्स कर देना है, परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਦਾ है। चिन्ह दी वाचा कि मैं रोज आऊंगी, प्रार्थना करांगी, घर ते पूरा ही परमेश्वर दा, पर एक साइड ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ दे देनी कि परमेश्वर ये चिन्ह दी वाचा होंगी, ਜਿਹਦਾ चिन्ह दी वाचा कि मैं 3 टाइम परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आऊंगी, मैं 3 टाइम इस अबूर करांगी, प्रॉमिस है, मैं ऐदा करांगी, मैं इस चीज ਨੂੰ करांगी, ठीक है ना, ये प्रॉमिस है। परमेश्वर ने इत्थे की बच्ची बननी सी वाचा, खतने दी वाचा बननी सी, खतना। किसी ने मैंने पर्सनल मैसेज करके पूछे खतना की हुंदा, खतना हुंदा एक, ठीक है। ए अज भी मुसलमान, अज भी मुसलमान इस खतने दी नू मनदे है, वो 7 दिन दे अंदर, 1.25 महीने दे अंदर अपने बच्चे का खतना कर देंगे, छोटे जे बच्चे का, बहुत पेनफुल हुंदा, बहुत पेनफुल हुंदा खतना। हालेलुया। छोटे जे बच्चे का वो अपने की करते, अपने बच्चे नू परमेश्वर नू दे देंगे, खतना कर देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ना एक एक ब्लड दी वाचा बन ली ना, ब्लड निकलिया, जिस उस जगह ते चीरा वजया, ब्लड निकल गया, खतना। तो परमेश्वर ने कहा जेड़ा खतना नहीं करेगा ओनू की करना, उस वाचा नू नहीं मनेगा, ओनू अपने चों निकाल देना, क्योंकि उन्हें मेरे ना वाचा नहीं बननी, उन्हें मेरे ना शपथ नहीं खादी, उन्हें मेरे ना प्रॉमिस नहीं कीता, उन्हें मेरे ना प्रॉमिस नहीं कीता, परमेश्वर ओनू निकाल देंदे, जो परमेश्वर के प्रॉमिस दे विच नहीं चलता, जो परमेश्वर की आज्ञावां च नहीं चलता। प्रीत मेरा सिस्टर 17 अध्याय दी 7 आयत में पढ़ना, 14 नू पढ़ना और 19 नू पढ़ना।
पाची जी 17 दी 7। 17 अध्याय जी, हाँ जी 17 अध्याय जी 7, 14 और 19। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਆਪਣੇ ਅਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਇੱਕ ਅੰਤ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਬੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਰ ਬੇਸੁਣਤਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁन्नत ਉਸ ਦੇ ਬਦਨ ਦੀ ਖੱਲੜੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ 15 ਪਾਸਟਰ ਜੀ 19। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਨੇਗੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸਹਾਕ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ और उसके पिछों उसकी अंश नाल एक अनंत नेम करके कायम करांगा। हालेलुया हालेलुया। समझ आई? 7 मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आश्चर्य की युग की वाचा बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर साडे वंशा दे परमेश्वर होंगे, उन्होंने ब्लैस करांगा, उन्होंने अपनी चुनी हुई कौम गिनांगा। हुण कई बच्चे मसीह च पैदा हो जाते और परमेश्वर नूं जानदे ही नहीं, बस वो कहंदे असीं वादे दी संतान आ, असीं मसीह आ, पर उन्हां दे काम मसीह वाले नहीं है, उन्हां दे काम मसीह वाले नहीं है। वो वादे दी संतान जरूर हो सकती है, वाचा दी संतान जरूर हो सकती है, खतना कर लिया उन्होंने, परमेश्वर दे विच पैदा हो गए, पर वो आशीषियां नहीं लै पांदे क्योंकि वो परमेश्वर दी शपथ नूं, परमेश्वर ने जो आग्यावां दित्तियां, प्रतिज्ञा कीती है कि तू ऐदां करेगा तो मैं तेनूं ऐदां करांगा। हुण प्रतिज्ञा सी खतना, हुण लिखिआ ना 14 जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खलनी का खतना ना हो वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। एग्जाम्पल, परमेश्वर ने क्या गंदे गीत नहीं सुनने, अश्लील फिल्मा नहीं देखनिया, गाल नहीं कढ़नी मुंह चो, गंदी गाल नहीं करनी, उसने वाचा तोड़ दी, फिर असीं किद्दां ब्लैस हो जावांगे। परमेश्वर दे ते असीं इस शपथ नूं, इस प्रतिज्ञा नूं ते नहीं मन्निया। परमेश्वर ने क्या ये चीज़ां तू नहीं करेगा ते मैं तेनूं ब्लैस करांगा। तुसीं बाइबल भी पढ़दे पे, प्रार्थना भी करदे पे, उपवास भी रखदे पे, पर साडे मूंह दे विच ते कंट्रोल नहीं है, गालां कड्ढण दे विच, चीज़ां दे विच कंट्रोल नहीं, फिर किद्दां आशीषित हो जावांगे? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਲਟਰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਲਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਅਬਰਾਹਮ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਔਰ ਸਿੱਧ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, नहीं ब्लेस हो सकते। हालेलुया। फिर 19 है, तब परमेश्वर ने कहा निश्चय तेरी पत्नी सारा तुझसे पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युगों युगों की वाचा होगी। हालांकि इसहाक पैदा भी नहीं होया सीगा, 18 अध्याय च पैदा होना सीगा, पर परमेश्वर ने उसका नाम भी दसता और ये भी कहता कि मैं प्रतिज्ञा करा। एग्जाम्पल, जो ਅਸੀਂ सही ਚੱਲਾਂਗੇ परमेश्वर साडे बच्चियां नाल एक वाचा बन लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर साडे बच्चियां नाल वाचा बन लो कि मैं तेनू ब्लैस करांगा। ਜਦੋਂ मैं पैदा होंदे सर अपने रुद्र ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ तक परमेश्वर ने मेरे बेटे ਨੂੰ कदी किसी चीज ਦੀ ਕੱਟੀ नहीं होण ਦਿੱਤੀ, कदी नहीं ਕੱਟੀ होण ਦਿੱਤੀ। अपने बच्चियां ਨੂੰ परमेश्वर ਕੱਟੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। अब्राहम दी आशीष भी इसहाक दे उपर ठहरी, इसहाक दी आशीष याकूब दे उपर ठहरी।
ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬਰਾहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਚਾਵਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੈ, क्योंकि ਉਹ परमेश्वर ਦੇ ਵਾਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 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 ਸੰਗਤੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਵਾਚਾ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਸਨ तेरे हाथ देने वाले होंगे, कभी लेने वाले नहीं होंगे। तेरे हाथ देने वाले होंगे, कभी लेने वाले नहीं होंगे। ये फिर आशीष आके ठह जाती, मैं घटी च भी तेनों वधांदा जावांगा, तेनों कदी घटी नहीं होएगी। ये आशीषां आके ठह जाती जदों असीं परमेश्वर दे प्रॉमिस नूं पूरा करदे। ये वाचा हुंदी जो मनुष्य परमेश्वर के साथ बांध लेता, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। असीं ते तोड़ दिंदे पे हां, मिनट लगांदे पे हां, मिनट लगांदे पे हां। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੜਖੜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜਕੁੜਾਇਆ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਲ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। हालेलुया। ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 3 ਵਾਚਾਵਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗਮਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ स्टडी कर रही थी तो मैं पढ़ रही थी, मैं देख परमेश्वर ने 400 साल पहले गल कह दी थी। हाँ, 15 अध्याय च लिखी हुई है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि तेरा वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेगा और उस देश के लोग दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वह बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। बड़ी गल है ना, परमेश्वर ने पहले ही 400 साल पुराना एक प्रॉमिस परमेश्वर ने दे दिता अब्राहम ਨੂੰ। पर अब्राहम ਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ। 10 ਸਾਲ प्लीज। और पेशेंस अब्राहम वेट करता रहा। हाँ, मैं कनान दे जाऊंगा, नहीं नहीं जिदा याकूब लेके आया मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਧਾਇਆ, ਫਲਵੰਤ ਕੀਤਾ और अपना सामर्थ्य हाथ दिखा के मिस्र ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਚਾ ਤੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਖਤਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਤਨਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਠੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੋਠੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਠਾ ਬੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल च लिखा पहलोठा मेरा है। चाहे लड़का चाहे लड़की है, परमेश्वर ने दे दो। अगर नहीं देता मीटिंग तो बाद दे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने 22 अध्याय च फिर परीक्षा लई। फिर परमेश्वर ने एक होर परमेश्वर ने अब्राहम ना वाचा बननी। फिर देखो परमेश्वर जो एक वाचा बनते, परमेश्वर ने पीछे प्रॉमिस कर दिते। फिर परमेश्वर कहते कि इन्हू मैं एक बार फिर जज करके देखा कि ये मेरी वाचा दे विच चल रहा है। 22 अध्याय दे विच परमेश्वर ने ओदी परीक्षा लई कि तू अपने बेटे इसहाक नू दे दे। पर उन्हें उस गल ते विश्वास रखिया कि तेरा वंश धूल दे किरणा दे बराबर होएगा। परमेश्वर ने प्रॉमिस, अगर परमेश्वर ने दिता है ते परमेश्वर लै रहा है ते दोबारा देन भी ताकत रखता है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਪਰਬਤ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ?
क्योंकि परमेश्वर कई बार बरकत दिखा के सानू बरकत दिंदे नहीं है कि देखा ते सही ਇਹਦੇ मन दे विच की है, मन दे विच की है। मन परमेश्वर कहंदे साडा देखना मनुष्य वर्गा पर परमेश्वर दा देखना किद्दां दा है? मन देखदा है परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਤੇ रंग रूप दे दे सोना ਉਹਨੂੰ बुलाना, काले ਨੂੰ ਤੇ बुलाना ही नहीं ना, काला है वो, सोने कपड़े नहीं पाए, पर ਉਹਦਾ मन साफ है। मैं अपनी फ्रेंड्स बनाईਆਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, मैं कदी ਉਹਨਾਂ ਦਾ रंग रूप नहीं देखदी सी, मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ दिल देखदी सी। सीरियसली मेरियां कालियां तो कालियां फ्रेंड्स ਸੀਗੀਆਂ, लो कास्ट ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, पर मैं दिल देखदी ਸੀ। मेरे मम्मी ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, मैं ਕਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ दिल देखो ना, ਉਹਨਾਂ ਦੀ नेचर देखो ना। मैं दिल देखदी सी, मन देखदी सी, मैं कास्ट नहीं देखदी, मैं धर्म नहीं देखदी, मैं दिल देखदी हां, मन देखदी हां, मन किद्दां। अज भी मैं इटली ਦੇ ਵਿੱਚ मेरी फ्रेंड है, मुसलमान है, पाकिस्तान ਦੀ है, कट्टड़ 5 साल हो गए ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। मन, ਤੁਹਾਡਾ मन कित्थे आ? इसलिए मन देखो, रंग रूप देख के दोस्त ना बनाओ। परमेश्वर की नजर साडे मन दे उत्ते रहिंदी है। सोना ना देखो, कहंदे रंग रूप ते खत्म हो जाना, नेचर ही रह जानी है। नेचर रह जानी साडी, बेस्ट नेचर साडा, बेस्ट करैक्टर सानू उच्चा करदा है। रंग रूप ते सानू उच्चा कर ही नहीं सकदा, वो ते ढल जाना। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने 22:18 लिखा, और पृथ्वी की सारी जाति अपने आप को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। धन्य मननगियां, शपथ खादी, धन्य मननगियां कि तू धन है। इस तरीके नाल ये सीगा अब्राहम नाल वाचा बननी, और परमेश्वर ने निर्गमन दे विच अपने प्रॉमिस नू याद किता, अपनी वाचा नू याद किता कि मैं जिहड़ी अब्राहम नाल वाचा बनी सी, मैं इनू निकाला। मैंने गवाही याद आ रही, एक फॉरन दी कोई गवाही, एक लेडी सी, उन्हें अपना बच्चा परमेश्वर नू दिता सी, पर बच्चा ओदा बिगड़ गया। पर वो हमेशा कहती सी, ड्रिंक करता सी, नशा करता सी, कहती नहीं परमेश्वर मेरा बच्चा तेरी सेवक ही करेगा, मेरा बच्चा तेरी सेवक ही करेगा, मेरा बच्चा तेरी। उन्हें इदां दी वाचा बन ली सी कि दिन रात उस वाचा ते चलदी सी, दिन रात अपने बच्चे लिए दुआ करदी सी। एक दिन ओदे समुंदर च तैर सी ते मछली ने ओदी लत्त नू जिद्दां पकड़ लिया ते मरन लिया सी, ते ओनू अपने बचपन दी मां दी प्रार्थना याद आई, उन्हें प्रार्थना की। अज वो पास्टर है। मां ने की कीता सी, अपना बच्चा दे दिता सी। उन्हें उस परमेश्वर ने उन्हें गल करनी शुरू कर दी। जो पता नहीं केड़ी कंट्री दे विच, मैं बहुत पहले गई सी, अज वो पास्टर है। शैतान हमेशा याद रखना, जिन्हां दी कॉलिंग हुंदी उन्हां दे पिछे हथ धो के पैंदा है। मैं इन्हां नूं खत्म करदा कि मेरे राज्य नूं। एक गल कहां, शैतान तुहाडे तो डरदा है कि अगर ये खड़ा हो गया ते मेरे राज्य दा नाश है। वो तुहानूं खड़े नहीं होण दिंदा, इसलिए खड़े हो जाओ। वो तुहाडे सामने छोटा हो जाएगा। अगर तुसी डरोगे, तुहाडे सामने हमेशा वड्डा रहेगा। जे तुसी खड़े होगे, वो तुहाडे सामने छोटा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वाचावां बनिया। हुण परमेश्वर ने वाचावां ते बहुत है। इसहाक नाल वाचा बन ली परमेश्वर ने। उत्पत्ति दे विच परमेश्वर ने याकूब नाल वाचा बन्नी, इसहाक नाल अलग बन्नी, याकूब नाल अलग बनी। याकूब दी वाचा जिहड़ी परमेश्वर ने बनी सी, वो बेस्ट वाचा ओदे आने वाले वंशां तक चली गई। क्योंकि याकूब ने जो एक बार गलती की, दोबारा उन्हें गलती नहीं की। उन्हें एक बार धोखा किया, दोबारा धोखा नहीं किया। दाऊद ने एक बार गलती की, दोबारा उन्हें गलती नहीं की। साडे कोल गलतियां होंदियां, पर जो असीं दोबारा वो गलतियां नहीं करते, फिर परमेश्वर सानू ब्लेस करे। हालेलुया। ਅਸੀਂ एक होर सिर्फ एक गल चीज समझण दी उस चीज नू करांगे। याकूब दी वाचा, हालेलुया। अठाई अध्याय है। 28 अध्याय है। उन्होंने परमेश्वर नाल एक वाचा बनी, एक वाचा बनी। जो अपने दौड़ रहा सीगा अपने भरा इसहाक तो कि मैनू हुण इसहाक ने मार देना, ओदी मां ने उन्हें दौड़ाता। रस्ते दे विच जदों एक जगह दिखी तो उन्हें कहा परमेश्वर दा इत्थे परमेश्वर दा मंदिर तो सिवा कुछ होर नहीं होना चाहिए। उत्थे उन्हें खंबा बनाया और अगे निकल गया। पर उत्थे किन्ने वाचा बनी। 28 अध्याय उत्पत्ति 28 अध्याय ओदी 17 आयत
16 तो पढ़ रही हैं, 16। तब याकूब जाग उठा और उसने कहा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को मान जाता था, ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, ये स्थान क्या ही भयंकर है, ये तो परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं होना चाहिए, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया, और उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, प्रॉमिस किया, शपथ खादी, परमेश्वर ना वाचा बननी, प्रॉमिस किया, वाचा बननी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। शपथ बननी उन्हें कि परमेश्वर ठहरेगा, वाचा बननी, मन्नत मंगी, प्रॉमिस किया। और ये पत्थर जिसका मैं खंबा खड़ा कर किया है, परमेश्वर का भवन होगा, और जो कुछ मुझे दे उसका दशवंत मैं अवश्य ही दिया करूंगा। मैं इसलिए इस चीज ਨੂੰ बनने पड़िया, ਜਦੋਂ परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ब्लैस करदे है, रोटी पानी कपड़े, तो परमेश्वर ਦਾ हिस्सा बनता है, क्योंकि ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ, परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ आशीषित किया है। और कई लोग कहते दसवंत पुराने नियम च नवे नियम च ना, अगर मैं एक गल कहना चाहती हां, ਇੱਥੇ ਤੇ परमेश्वर ने आग्यावां ਦਿੱਤੀਆਂ ही नहीं ਸੀਗੀਆਂ। दसवंत ਦੀ ਗੱਲ अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰੀਏ, मैं एक नॉर्मल समझाने की गल कर रही हूं, पर मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है। ਜਦੋਂ निर्गमन ਦੇ ਵਿੱਚ आग्या ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ परमेश्वर ने दसवंत किया, पर अब्राहम याकूब ने क्या सी दसवंत देवांगे, अपनी इच्छा है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कहते हो फिर करो, नहीं ते ना करो। परमेश्वर ਨਾਲ वादा ना करो जो तुसी कह के पूरा नहीं कर सकते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੰਡ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਦੰਡ ਆਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਾਂ। हालेलुया। बेटर है, मैं इसलिए इस आयत में पढ़िया कि उन्हें परमेश्वर ना, यदि मेरा परमेश्वर, जो ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ परमेश्वर ਵਧਾਏਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ परमेश्वर ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ परमेश्वर है। इसलिए जो भी ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਬਣੀਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਆਲਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਚਾ ਬਣਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੋੜੋ ਨਾ। हालेलुया। टाइम हो गया, क्लोज करिए, कल परसों करिए कि चलिए आगे, लंबा चला जाना। पूछ रही है मैं, आगे बढ़िए। ये कौन बोलिया? मैं बोली क्योंकि मैं दूसरे फोन पे, इस फोन च मेरे नंबर सेव नहीं किए हुए। हुण परमेश्वर ने एक दाऊद नाल वाचा बनी, एक नमक की वाचा होंदी, तुसीं सिगे उस टॉपिक ते मैं नहीं जावांगी, ठीक है ना। मैं तुहानूं दस चुकी हां, जो असीं किसी दा नमक खांदे, कदी धोखा ना करो। ये भी बड़ा प्लस हुंदा, साडा करैक्टर बड़ा मायने रखता है। जो परमेश्वर ने दाऊद नाल वाचा बनी, हुण परमेश्वर ने दाऊद नाल वाचा क्यों बनी? जो दाऊद ने कहा कि मैं घर दे विच रहिंदे आ, मैं अपने परमेश्वर लई की बनावांगा, भवन बनावांगा। परमेश्वर कहंदे तू मेरे लिए इन्ना सोचिया। जो असीं परमेश्वर लई थोड़ा जिहा भी सोचदे हां ना, मैं परमेश्वर लिए ये चीज करांगा, परमेश्वर काश रुपये रोक के खोल देंगे। सीरियसली, जो मैं मिनिस्ट्री करने का सोचा, खुदा ने मैंने ओ इन्ना कुछ दिता, संभाले नहीं समझ। सीरियसली, खुदा होर देन जा रहे, कहते मैं उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण ਨੂੰ कमांड करता कि मेरी बेटी ਨੂੰ ब्लेस कर, मैं आकाश रुपये रोक के खोल के तेन ब्लेस करांगा, मैं तेन श्रेष्ठ करांगा। जो तुसीं थोड़ा जिहा भी स्टेप परमेश्वर ਲਈ चुकदे, थोड़ा जिहा भी, जो दाऊद ने इस चीज ਨੂੰ सोचा ना कि मैं परमेश्वर लिए ये करांगा, परमेश्वर कहते अच्छा। फिर परमेश्वर ने कितना वड्डा वादा दाऊद ਨੂੰ दे दिता। दूसरा शमूएल 7 है कि मैं तेरे वंश ਨੂੰ अपने अगे बनाई रखांगा, तेरी गद्दी ਨੂੰ कदी भी अपने अगों मिटावांगा। इजराइली जो है ना, इजराइल दे शायद 10 गोत्र गुम गए है, इजराइल च सिर्फ यहूदी रह गए।
मनशे, लेवी सब खत्म हो चुके हुए गोत्र, सिर्फ यहूदी रह गए, बाकी 10 गोत्र घूम गए हुए। जो ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਸ਼ੇ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ बुक पढ़ रही थी, सिर्फ यहूदी है और अन्य जाति है, बाकी नहीं है। वो 10 गोत्र घूम गए, बैक नहीं हुए। क्यों? सिर्फ दाऊद ਦੀ ਵਾਚਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੜਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ ਬੜੀ ਡੀਪਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਖੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਚਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੰਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 7 ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਤਾਨ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ 16 ਚ, ਵਰਨ ਤੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਦਾ ਅਟਲ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ सदैव ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਆਲਮੋਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੇਰੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ। इस अध्याय ਨੂੰ पूरा पढ़ना। 11 बजे उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर न्याय ठहराता था, और मैं तुझे तेरे सब शत्रु से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। घर मतलब अगर असली परमेश्वर ਲਈ कुछ करते हैं, सारे घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ डिवोर्स खत्म हो जाए। घर बनाए रखांगा, मैं तेरी गद्दी ਨੂੰ स्थिर रखांगा, तेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ याजकी कराना। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ याजकी ਘਰਾਣਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਿਕਲੂਗੇ? ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਭਵਿष्यवक्ता ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾ, तेरा यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। लिखिया 12 च लिखिया, जब तू प्लीज मेरा सिस्टर जी पढ़ना तुसी, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसे राज्य स्थिर करूंगा। इस करके हमेशा परमेश्वर ने, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਗਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ, ਥੱਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੋਝ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਯਾਕੂਬ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, है ना, अपने आप ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੂन्य ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਗ੍ਰੇਸ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਾਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, परमेश्वर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ लिए ਕੀਤਾ, मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए करा। किसने पहले परमेश्वर को दिया? पहले परमेश्वर ने दिता है, फिर ਅਸੀਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ परमेश्वर पहले तू दे फिर ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ। परमेश्वर ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, परमेश्वर ਤੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, अच्छी हेल्थ दे चुकी है, अपने अनुग्रह दे चुके हैं, परमेश्वर चुन चुके हैं, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या
वरन तेरा घराना, तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बने रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगे दाऊद ने फिर 18 तो बाद प्रार्थना की थी। प्लीज इस प्रार्थना ਨੂੰ पढ़ना, बड़ी अच्छी प्रार्थना है। ਇਹ इतिहास सारा ਦੇ ਵਿੱਚ भी है। उस इतिहास सारा ਦੇ द्वारा परमेश्वर मेरे ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, मैं तुझे आशीषित करता हूँ, तेरा घराना, परमेश्वर आपने कहा है तेरा घराना मेरे सामने सदैव बना रहेगा। ਮੈਨੂੰ बहुत अच्छा लगता ਸੀ पढ़ना, बहुत अच्छा लगता ਸੀ पढ़ना, मैं हमेशा पढ़ती ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕਰੋਗੇ, ਵਾਚਾ ਬਣੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर वाचा बनते है। परमेश्वर ने दाऊद ना वाचा बनी। भजन संहिता 89 बड़ा अच्छा भजन है। इस भजन को कभी पढ़ना, मेरे बहुत पसंद है भजन 89 और 3 और 4 पढ़न जा रही है। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई, मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राज गद्दी को पीढ़ी पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। पर कहते लिखे थे इसे दोबारा पढ़ना जा रही, मैंने कहा, तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी। चुनिया होया कोई भी हो सकता है, इस समय दाऊद नहीं, ਅਸੀਂ भी हो सकते हैं। चुनिया होया कोई भी हो सकता, ਤੁਸੀਂ भी चुने हुए हो सकते। वाचा बांध ली परमेश्वर ने तोड़ नाल, चुने हुए कोई भी हो सकता है। लिखे फिर, तू स्वर्ग से अपनी सच्चाई से स्थिर रखेगा। सॉरी मैं गलत पढ़ गई। मैंने अपने दाऊद से शपथ खाई है। परमेश्वर शपथ खा लेंदे है, परमेश्वर प्रॉमिस कर लेंदे है। शपथ खाना मतलब प्रॉमिस करना, प्रतिज्ञा लेनी, वाचा बननी, समझौता करना। मैं समझौता कर लिया इस इंसान नाल, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करांगा। एक दिन मैं जॉब तो अद्धी आ रही थी, मैं कहा परमेश्वर एक मुश्किल जाती, दूसरी मुश्किल आ जाती, की स्ट्रगल लाइफ पता नहीं किदों खत्म होना है स्ट्रगल। कहते तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करांगा। तू मेरा काम कर, मैं तेरी जिंदगी का स्ट्रगल खत्म कर दूंगा, तू मेरा काम कर। खुदा मेरी जिंदगी का स्ट्रगल खत्म हो गया, स्ट्रगल खत्म हो गया, संसारिक स्ट्रगल खत्म हो गया। जो मेरा संसारिक स्ट्रगल खत्म हुआ ना, मैं अपने हस्बैंड के मैं क्या हुन आत्मिक स्ट्रगल शुरू हो गया 2018-19। मैं क्या संसारिक खत्म हो गया, मेरे हस्बैंड अच्छी जॉब मिल गई, आत्मिक शुरू हो गया, सेवक का स्ट्रगल शुरू हो गया। संसार जो विश्राम देता है, जॉब दौड़ भज बहुत स्ट्रगल तो निकल गए है ना। कहते आत्मिक स्ट्रगल एक दिन खुदा इस स्ट्रगल तो भी निकाल दोगे, जो चलते रवांगे स्ट्रगल भी हल्का लगन लग पऊगा। परमेश्वर ਸਾਨੂੰ विश्राम देने वाला परमेश्वर है। जो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਬਣੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਾਚਾ ਬਣੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। दाऊद ने लड़ाइयां लड़ियां पर ਉਹਦੇ बेटे ने लड़ाइयां नहीं लड़ियां, सुलेमान ने, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। जो मैं स्ट्रगल कर रही हूं, मेरा बेटा जो इस मिनिस्ट्री ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹ स्ट्रगल नहीं करेगा जो मैं ਕੀਤਾ। समझ आ रही गल? जो मैं ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ बेटा नहीं करेगा, इस मिनिस्ट्री ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ स्ट्रगल कर लोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ी ਨੂੰ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। दाऊद परमेश्वर ने पाया, अच्छा लगा, और मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा और तेरी राज गद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए रखूंगा। पास्टर दीनाकर दी कहानी अगर मैं कहूं, दीनाकर कौन सीगा? दीनाकर ਉਹਦੇ बेटे ਉਹਦੇ पोते आ सेवकाई करे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ स्ट्रगल नहीं करना कि ਪਿਆ जो दीनाकर ਨੂੰ करना ਪਿਆ ਸੀ। पास्टर जी एग्जाम्पल, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ स्ट्रगल, ਅੱਜ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ स्ट्रगल ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसलिए परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋਗੇ। लास्ट आयत करन जा रही हैं और मैं कल परसों करांगी वाचा तोड़न वालियां नाल परमेश्वर फिर की करदे है।
जो वाचा नु तोड़ दे। ये मैं लास्ट आशा वाला करने दी। दूसरा इतिहास 13 अध्याय, दूसरा इतिहास 13 अध्याय, हालेलुया। ते मैं इसलिए आयत लिख ली सी कि ये नमक वाली वाचा है। क्या तुमको ना जानना चाहिए कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने नमक वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इजराइल का राजा सदा के लिए दिया है। मतलब परमेश्वर ने दाऊद ਨਾਲ नमक वाली वाचा, ਜਿਹੜੀ नमक वाली वाचा ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। इसलिए ਇਹਨੂੰ ਬਾਛੋ ਪੜ ਲੈਣਾ। ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਵਾਚਾ ਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਨਾ ਹੈ 15 अध्याय, राजा आसा का सुधार। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ परमेश्वर ਲਈ सुधार ਕੀਤਾ, 12 ਚ ਲਿਖਿਆ है उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन सारे जीवन से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को खोजेंगे। वाचा बनी, तुसी खोज रहे हो परमेश्वर ਨੂੰ, उस तरीके ਦੀ वाचा बननी है। ਤੁਹਾਡੀ वाचा किद्दां दी है परमेश्वर ਨਾਲ? हालेलुया। ਅਸੀਂ 8 आयत तो पढ़ांगे। पहले उन्हें एक वेदी बनाई परमेश्वर दी, किने? आसा ने एक वेदी बनाई। पहले सानू परमेश्वर ने एक वेदी बनानी पैंदी, टाइम फिक्स करना पैंदा है, गलबात करन दा एक प्रॉपर एक समा रखना पैंदा है। 11 आयत लिखा है, उसी समय उन्होंने उस लूट में से जो वे ले आए थे 700 बैल 7,000 भेड़ बकरियां यहोवा को बलि करके चढ़ाए, और उन्होंने वाचा बांधी कि हम अपने पूरे मन, ਅਸੀਂ ਵੀ परमेश्वर ਨਾਲ वाचा बनीए कि ਅਸੀਂ भी पूरे मन ਨਾਲ परमेश्वर ਨੂੰ खोजिए। वाचा बनीए, ਅਸੀਂ भी पूरे मन ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ चलिए। लेकिन पूरे मन और सारे जीवन से अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करेंगे। जो खोज करते परमेश्वर उन्होंने मिलते हैं। फिर जो परमेश्वर ने इस बाइबल च प्रतिज्ञावां लिखियां, जो फिर परमेश्वर ने इस बाइबल दे विच सानू ब्लैसिंग्स लिखियां, शपथ कीती है कि मैं तेनू ये चीज करांगा, मैं तेनू ये चीज करांगा। हुण व्यवस्था भी 28 सारे पढ़दे पे, खुदा दा आत्मा मैनू कह रहे हो, कहंदे जो मेरे वचन नू सुनदे हैं, मेरे वचन ते चलदे हैं, उन्हां नू मैं की करांगा? स्टेट कर। ये परमेश्वर दी वाचा है, ये परमेश्वर दी वाचा है। अगर तू मेरा कहना मन्नेगा, अगर तू मेरिया गल्लां नू सुनेगा, अगर जो मैं नियम ठहराए उस हिसाब नाल जिंदगी जिएगा, मैं तेनू की करांगा? श्रेष्ठ करांगा। ਅਸੀਂ 28 कदे 28 ਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं खोज रहे। बाइबल च की लिखा है? अपने परमेश्वर को पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से ढूंढ। साडा मन किते होर है, साडा दिमाग किते होर है, बॉडी ते ਅਸੀਂ बैठे हुए हैं, मन ते किते होर है। सांसां सांसां सांस नाल भी परमेश्वर ਨੂੰ, सुते पे भी अगर हैगा ते गैर जुबान बोलो। मैं जो सोंदी है गैर जुबान बोलती हुई सोंदी हूं, अपने को भजन लगा के सोंदी हूं। मतलब हर एक सांस ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵरण ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ परमेश्वर ਦੀ आराधना ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, परमेश्वर ਦੀ आराधना। हालेलुया। मैंने पूरे की किता? वाचा बांधी। और क्या क्या छोटा, क्या 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 बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इजराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वह मार डाला जाएगा। उन्हें कितना वड्डा एक वाचा बनी अपने राज्य दे विच। मैं भी मिनिस्ट्री कर रही, पर स्टिकनेस ना कर रही। जो सीरियस नहीं है उन्होंने मैं डांट के निकाल दूंगी। अच्छा लगे बुरा लगे, जो है ही नहीं सीरियस, जो खोजी नहीं है सीरियस, उन्होंने डांटो, करो। टाइम वेस्ट थोड़ी करना सी फोन ते देते। नो, मैं नहीं करती, मैं अपनी गल कर रही, बाकियां दा मैनू नहीं पता। हालेलुया। पर 14 च लिखिया, उसने जय जयकार के साथ तुरहियां नरसिंगे बचाते हुए ऊंचे शब्द से यहोवा के साथ शपथ खाई। फिर शपथ आ गई, फिर प्रॉमिस आ गया।
सिर्फ आसा है जिन्हें प्रॉमिस किया है। सिर्फ एक बाइबल च मैं जो स्टडी कर रही सी, मैंने सिर्फ यही मिलिया सीगा, दाऊद तो बाद जिन्हें शपथ खाधी, जिन्हें वाचा बनी, जिन्हें लोगों ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਅਧਿਆਇ 14 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਚੋ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਪੜੋਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ लड़ाइयां तो विश्राम देता। हालेलुया। शपथ खाई, ये शपथ खाकर सब यहूदी आनंदित हुए क्योंकि उन्होंने अपने सारे मन से शपथ खाई। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਪਥ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਪਥ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਪਥ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕ ਟਕ ਕਰੂਗੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं तो एक अपने हस्बैंड जो मैं मसीह चाहिए ना, प्रभु सेवकाई करनी 5 साल 6 साल सेवकाई मंगती रही, करती भी रही, मंगती भी रही। जो मिनिस्ट्री मिली, नहीं प्रभु नहीं प्रभु नहीं प्रभु, पर जो मैंने खुदा ने आत्मा नाल कहना ना, तू तो मंगती सी, तू तो मंगती सी, पर मैं कहती इन्ना प्रैशर हुंदा खुदा ना, बहुत टफ हुंदा। पर की है जो मन नाल असीं परमेश्वर नाल प्रॉमिस करते हैं, मन नाल, उन्हें मन नाल लिखे ना, सारे मन से शपथ खाई। मन नाल प्रॉमिस करो। याद रखना, साड़ी जुबान दियां दुआवां खुदा इन्ना नहीं सुनदे, सिर्फ जिन्नी साड़ी मन दी दुआ नूं सुनदे। परमेश्वर गूंगे दी प्रार्थना नूं भी सुनदे है, मन। पर मैं एक गल हमेशा इस प्लेटफॉर्म ते सिखा चुकी है, मुंह नाल भी अंगीकार करो, मन नाल भी अंगीकार करो, मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मन कह रहे, मुंह ना कह रहे जिंदगी बदल चुकी, पर मन कह रहा नहीं बदली। अगर जो मन कह रहे ना, तो मन नूं भी स्ट्रॉन्ग करो, बदल गई है, सुन बदल गई है। जो मैं अपनी चंगाई का अंगीकार शुरू किया सी ना, आत्मा जाती थी ये बीमारी तो ठीक नहीं होनी, मैं जुबान नाल भी अंगीकार किया, मैं मन नाल भी अंगीकार किया कि मेरी जिंदगी बदल चुकी है। प्रीत मेहरा सिस्टर दोनों, प्रीति मसीह, ठीक है। ये नहीं जुबान चो कह रही, मन तो कुछ होर ही कह रहे कि नहीं नहीं हले नहीं तेरा कुछ बनया है ना, पर मन ने कह बन गया है, मेरी जिंदगी चेंज हो चुकी है, मेरी ये ब्लेसिंग नहीं है। जरूरी नहीं तो जुबान ना बोलिए, मन नाल बोलिए, मेरी ये ब्लेसिंग नहीं है, मेरी ये ब्लेसिंग नहीं है। मैं जो करती हूँ ना, मैं मेरी जिंदगी कई कई प्रेयर पॉइंट्स है, मैंने मिला नहीं ये मेरी ब्लेसिंग नहीं है, खुदा मैनू ये ब्लेसिंग नहीं चाहिए, ये मेरी ब्लेसिंग नहीं है, मेरी असली ब्लेसिंग तक मैनू पहुंचाओ। सानू पता होना चाहिए साडी असली ब्लेसिंग की है। ये तुहाडी ब्लेसिंग नहीं है, रोना तुहाडी ब्लेसिंग नहीं है, आंसू बहाना तुहाडी ब्लेसिंग नहीं है, दुख सहना तुहाडी ब्लेसिंग नहीं है, बीमारी तुहाडी ब्लेसिंग नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे कोड़े साडे लई बेकार जांदे जिस बीमारी दे विच, ये साडी ब्लेसिंग नहीं है। सोचो तुहाडी ब्लेसिंग की है, तुहाडी ब्लेसिंग है आनंद, शांति, सुकून, प्रॉस्पर होना, ये साडी ब्लेसिंग है। चंगाई साडी ब्लेसिंग है, आजादी साडी ब्लेसिंग है, रोना साडी ब्लेसिंग नहीं, आनंदित हंसना साडी ब्लेसिंग है। कहते यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। मेरा स्ट्रॉन्ग है, मेरा परमेश्वर है जो मेरे युद्धा नु लड़ता है। हालेलुया। फिर 15 सारे मन से शपथ खाई और बड़ी अभिलाषा से उसको ढूंढा और वह उनको मिला और उसने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। विश्राम। आसा ने लड़ाइयां नहीं लड़ियां, जो तुसी पूरा अध्याय पढ़ोगे ना, वो आराम नाल विश्राम नाल अपने पूर्वजां को गया। ना उहदे देश लड़ाई हुई, ना उहदे हुंदे हुई लड़ाई हुई, कदी लड़ाई हुई। ते 35 साल राजा 19 च लिखिया है, राजा आसा के राज्य में 35 वर्ष तक फिर लड़ाई ना हुई। फिर साडे भी दिमागां दे विच कोई युद्ध नहीं होएगा, दिमागां दे विच, मनां दे विच कोई युद्ध नहीं होएगा। याद रखना, शांति सुकून मिलेगा। इसलिए तुहाडे उपर डिपेंड है कि तुसी परमेश्वर नाल किदां दी वाचा बननी है। अज वाचा बनो, अज परमेश्वर नाल प्रॉमिस करो। मैनू नहीं पता तुसी किस चीज दा प्रॉमिस करना,
जी ਤੁਹਾਡੀ फर्स्ट आयत है खुदा ने ताना गलबात की उस आयत में लेके जाओ परमेश्वर मैं इस आयत पे खड़ा रवांगा। मेरी बेस्ट आयत है मांगोगे तो दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरी बेस्ट आयत है मेरे मन को आनंदित करके मैं उसे जवाब दूं। जो मैंने दुखाना में मैं खुदा नहीं ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ आनंदित करना है, ਤੁਹਾਡੇ मन ਨੂੰ आनंदित करना है। बेस्ट आयत जो ਤੁਹਾਡੀ है लेके परमेश्वर के शपथ खाओ कि परमेश्वर मैं ਤੁਹਾਡੇ को 3 टाइम आऊंगी, परमेश्वर मैं ਤੁਹਾਡੇ को इस समय आऊंगी, परमेश्वर मैं ਤੁਹਾਡੀ आराधना करांगी, सच्चे दिल ना करांगी, मैं ऐदा करांगी। कोई भी परमेश्वर ना अपनी प्रॉमिस करो। फिर मैं गलातियां 3 अध्याय 15 आयत में पढ़ के क्लोज करन जा रही हूं, बाकी ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। गलातियां 3 अध्याय और 15 आयत। हे भाइयों मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है ना उसमें से कुछ बढ़ाता है। पक्की करो परमेश्वर अपनी वाचा, परमेश्वर ना अपनी वाचा पक्की करो। टाइम ना लगाओ, खुदा आज ही तानू ब्लेस करेगा, खुदा आज ही तानू आजाद करेगा। प्रॉमिस करो। खुदा तुहाडे लिए युद्ध लड़ोगे, परमेश्वर तानू ब्लेस करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर देखे की करे, परमेश्वर में वाचा बनना है, परमेश्वर में प्रॉमिस करता है, मैं प्रॉमिस करता हूं अगर तुसी मेनू चंगा करोगे मैं तुहाडे लिए ये करांगा। परमेश्वर अगर तुसी मेरे लिए आ करोगे मैं तुहाडे लिए ये करांगा। प्रॉमिस। आज परमेश्वर तुहाडे तो प्रॉमिस चाहते हैं, प्रॉमिस करो। और जिद्दां ही तुसी प्रॉमिस करोगे परमेश्वर तुहाडी जिंदगी में बदल दो। वचन सुनन वाले ते वचन पढ़न वाले नहीं, वचन ते चल ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। परमेश्वर ਅੱਜ मैं वाचा ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। मैं उन्होंने दोबारा कदी कुड़कुड़ावांगा, मैं उन्होंने दोबारा कड़ी मैं अपनी पुरानी जिंदगी नु अज मैं वादा करदा मैं अपनी पुरानी जिंदगी नु भूलना चाहता, मेरी मदद सहायता करो। क्योंकि आपने कहा तू अपने दुख को पानी की तरह भूल जाएगा, तेरा प्रकाश दोपहर की तरह चमकेगा। परमेश्वर आपने कहा मैं तुझे हसमुख करूंगा, तुझसे जय जयकार कराऊंगा, तेरे वैरी लज्जा का वस्त्र पहनेंगे, दुष्टों का डेरा कहीं रहने का। परमेश्वर मैनू धो के साफ कर, परमेश्वर मेरी कमियां नु भरो, मैनू पवित्र करो। परमेश्वर मैनू यूज करो, मैनू किस काम लिए पैदा किया है, मैनू किस काम लिए चुनिया है, मैनू क्यों चुनिया है, मसीह च मैनू क्यों चुन। देखो मसीह च परमेश्वर का एक मकसद है तुहानू चुनन दा। परमेश्वर की तुहाडी जिंदगी च बहुत बड़ी योजना है। साडी कमियां करके कई बार असीं परमेश्वर की योजना नू पूरा नहीं होण दिंदे, साडे कुड़कुड़ान करके, साडे बोलन करके, कई कमियां करके। परमेश्वर ने की किया, तेरे आने वाले वंश ना भी वाचा बनना। परमेश्वर दे मन नू आनंदित करो कि परमेश्वर स्वर्ग नू झुका के नीचे आके ताना प्रॉमिस करन मैं तेरे लिए आ करना चाहता है। हालेलुया। तू मेरे मन नू आनंदित किता, मैं तेनू गर्व दा फल देना चाहता। तू मेरे लिए आ किता, मैं तेरे लिए आ करना चाहता है। तू मेरे लिए चलिया, तू अपने दुखा नू पीछे रखिया, अपनी प्रॉब्लम्स नू पीछे रखिया, तू मेरे विच चलिया, मैं तेरे लिए आ करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड मेरे जिंदा खुदा, थैंक यू लॉर्ड मेरे परमेश्वर इस कलाम के लिए। परमेश्वर जैसे आपने परमेश्वर स्वर्ग को झुका के नीचे उतर आए, आपने अब्राहम से वाचा बांधी मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, आपने दाऊद से वाचा बांधी मेरे जिंदा खुदा, आपने याकूब से नूह से वाचा बांधी मेरे जिंदा खुदा, आपने शपथ खाई मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज मेरे जिंदा खुदा हम भी आपसे वाचा बांधना चाहते हैं परमेश्वर, हमारी मदद सहायता करिए मेरे परमेश्वर। वान नखारे सन्नम शोरो सुन्नम वाला लखार सन्नम शोरो सुन्नम वाला लखार सन्नम दीन नखारे सन्नम शोरो सुन्नम वाला लखार सन्नम शुक्र सुन्नम वाला लखार। जैसे मेरे जिंदा खुदा तेरे दास आशा ने आपसे वाचा बांधी परमेश्वर कि मैं पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढूंगा, मैं जीवन भर परमेश्वर का खोजी रहूंगा मेरे जिंदा खुदा। आज इस ऑल्टर इस तखत के आगे परमेश्वर जो आपका तखत लगा हुआ है परमेश्वर, हम वाचा बांधते हैं परमेश्वर, हम आपको पूरे मन से खोजेंगे मेरे जिंदा खुदा, हम आपके खोजी रहेंगे। आपने पवित्र शास्त्र में लिखा जो मेरी खोज करता है मैं उसे मिलता हूँ। परमेश्वर की खोज करो जब तक वो मिल ना सके, उसके दर्शन की खोजी रहो जब तक वो दर्शन ना दे। परमेश्वर हमारे नजदीक है, हमारे मनों में है। हालेलुया। मेरे जिंदा
खुदा जब दाऊद ने सोचा कि मैं परमेश्वर का भवन बनाऊंगा, परमेश्वर आपने उसके घराने को स्थिर कर दिया मेरे जिंदा खुदा, अपने आगे उसकी गद्दी को हमेशा बनाए रखा मेरे जिंदा खुदा। दाना न खाल खेर सन्नम शोर सन्नम वाला मेरे जिंदा खुदा, अपने भजन संहिता मेरे जिंदा खुदा 103 में लिखा है, जो मेरी वाचा का पालन करता है मैं उसे आशीषित करता हूँ, जो मेरी वाचा का पालन करता है मैं उसे आशीषित करता हूँ, उसके नाती पोतों को भी ब्लेस करता हूँ मेरे जिंदा खुदा। हम आपकी वाचा का पालन करने वाले बन जाए परमेश्वर, आपकी प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाले बन जाए परमेश्वर, आपकी आज्ञा के अधीन चले मेरे जिंदा खुदा। तो आपने कहा मैं आकाश रूपी झरोखे खोल के तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे सिरा ठहराऊंगा पूंछ नहीं, मैं तेरे सताने वालों के आगे मेज बिछाऊंगा। वान न खा सन्नम वाला लखा, वो तुझसे लड़ेंगे तो सही पर तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि तेरी तरफ से लड़ने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आपने कहा तेरी नाम धराई के बदले में तुझे दुगना भाग दूंगा। दाना न खा सन्नम वाला लखा सन्नम सिर्फ तू मेरा खोजी बंदा ने खेर मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तेरे सींग को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे देवदार की तरह बढ़ाऊंगा। दाना ने खेर जिनके दिल तेरे लिए पत्थर है मैं उनके दिल को मांस कर दूंगा, मैं उन्हें बदल दूंगा। दाना ने खेर मेरे जिंदा खुदा, हम अपने आप को आपके आगे सरेंडर करते हैं, जीरो करते हैं परमेश्वर। हम अपनी जिंदगियों में आपका वेलकम करते हैं परमेश्वर, हमारी जिंदगियों में आइए परमेश्वर, हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करिए मेरे जिंदा खुदा, जिससे आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर। दान खान ने खेर सन्नम वाला खारा सना, जिसे आप छू लेते हैं उसकी जिंदगी बदल जाती है परमेश्वर। इस प्लेटफॉर्म के एक एक जन के ऊपर मैं आपका छिदा हुआ दाहिना हाथ मांगती हूँ परमेश्वर, अगुवाई मांगती हूँ, बड़ा छुटकारा मांगती हूँ मेरे जिंदा खुदा। दान न खेर न खाना न खारा सना, जो ऑल्टर्स कर रहे हैं परमेश्वर, जो आप में बढ़ रहे हैं उन्हें बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। न खाने ने खेर सन्नम दोरो सन्नम नाना न खारे सन्नम वीर सन्नम शूर सन्नम वाना न खारे सन्नम शूर। जैसे आपने असा को विश्राम दिया परमेश्वर, उसने उसके बाद कभी लड़ाई नहीं लड़ी परमेश्वर। आज से मेरे जिंदा खुदा हमारे घरों के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़े ना हो मेरे जिंदा खुदा, लड़ाई झगड़े वाला वाद विवाद का आत्मा मेरे जिंदा खुदा हमारे घरों को छोड़ के चला जाए परमेश्वर, दरवाजे खिड़कियों से निकल जाए मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर। और वेलकम करते हैं शांति की आत्मा को, वेलकम 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 शांति का आत्मा हमारे घरों के अंदर, शांति का आत्मा, प्यार का आत्मा मंडराए। दाना ने खारा सन्नम दया का आत्मा परमेश्वर, मेल मिलाप का आत्मा हमारे घरों के अंदर आ जाए। दाना ने खेर सन्नम शोर, हर एक वो आत्मा मेरे जिंदा खुदा जो आपकी तरफ से हमारी जिंदगियों से हमारे घरों से निकल जाए। वना खोरो सुन्नम शूर सुन्नम वाला खारा सन्नम शोर सुन्नम दारा सन्नम वारसा। मेरे जिंदा खुदा हमें अपने हाथों में ले लीजिए मेरे जिंदा खुदा, हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा लीजिए मेरे जिंदा खुदा। आप हमारी ढाल है मेरे परमेश्वर, आप हमारी चट्टान है मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर। आपने कहा मेरे हाथों से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता मेरे जिंदा खुदा, हमें अपने हाथों में ले लीजिए मेरे जिंदा खुदा, हमें आपके हाथों से नहीं छूटना मेरे जिंदा खुदा, हमारे हाथों को पकड़ लीजिए मेरे जिंदा खुदा, हमारी आत्मा हमारे प्राणों को ले लीजिए, हमें संभाल लीजिए। दाना खेर सन्नम। दाऊद कहता है हे मेरे प्राण तू अंदर ही अंदर क्यों गिरा जाता है, यहोवा के ऊपर भरोसा रख, वो तेरी जीवन की ढाल है। हालेलुया। दाना खारा सन्नम शोरो सन्नम वारस सन्नम शोरो सन्नम वारस सन्नम शोरो। मेरे जिंदा खुदा हमारा निज भाग तो सुना था परमेश्वर, आपने बहुत आई से बरसात की, आपने उसे हरा भरा कर दिया मेरे जिंदा खुदा। दाना खारा सन्नम शोरो सन्नम वाला खारा, आपने हमें अलग किया परमेश्वर, जैसे आपने अब्राहम को परमेश्वर ऊर नगर से निकाला परमेश्वर, आपने फिर उसे लूत से अलग करके परमेश्वर आशीषित किया, ब्लेस किया परमेश्वर। आपने हमें अपने घरानों से अलग किया परमेश्वर, चुन लिया अपनी महिमा के लिए परमेश्वर। हमारी जुबानों से सिर्फ आपकी महिमा हो परमेश्वर, हमारी जुबानों से सिर्फ आपकी महिमा हो मेरे जिंदा खुदा। खामा ना शकोरो सुन्न मुबारक सन्न मदार सना, हम मेरे जिंदा खुदा सिर्फ आपका अनुवाद करें, गुणगान करें, आपकी महिमा करें। जिस काम के लिए आपने हमें चुना है, जिस मकसद के लिए आपने हमें इस धरती के ऊपर भेजा, हम उस मकसद को परमेश्वर उस काम को पूरा करें आपकी आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा मेरे जिंदा खुदा। हमारी एक भी इच्छा, हमारी एक भी सोच ना पूरी हो, आपकी इच्छा, आपकी सोच, आपकी युक्ति हमारी जिंदगियों में पूरी, क्योंकि आपकी सारी योजनाएं भलाई की हैं परमेश्वर, हर एक योजना भलाई की। आज हमें लगता है कि हमें दुख तकलीफ है परमेश्वर, पर मेरे जिंदा खुदा उस योजना को जब आप पूरा करते हैं तो हमें शांति मिलता है, सुकून मिलता है परमेश्वर। हमारी जिंदगी में हमारी एक भी इच्छा, हमारी एक भी सोच ना पूरी हो, आपकी इच्छा, आपकी सोच पूरी हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर मैं सबके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर,
इन्हें मल्टीप्लाई करिए, प्लस करिए, बढ़ाइए, परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने, जिस मकसद के लिए पैदा किए उस मकसद को पूरा करिए यीशु के नाम से। आमेन 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 आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, खुदा तुहानू ब्लेस करन अपने नाम